So students, we were studying a little bit on solutions of simultaneous linear equation. We were studying about solutions. Suppose two equations are given. So I had told you in the previous class that what is the meaning of solution of simultaneous equation. That we are looking for those values of x and y which when kept in this equation will satisfy this equation and kept in this equation will satisfy this equation also. That means that unique value of x and y. There will be many value which will satisfy this and there will be many value this will satisfy which, but there will be one unique value of x and y which will satisfy both of these. Now another thing to be very sure is that there may not be any value. So we have to see that also, but here I have taken the equations over here and we check now. So how to solve this is, first we have the graph in front of us. So you also have the graph. Now I take up the first equation and the process, normal process, what we have to do is 2x plus 3y is equal to 12. Then we make these boxes. Please check how I am making this, x and y. Now we can take up any value of one of the variable and calculate the value of this other variable. Suppose I put y is equal to 0, then 2x is equal to 12, so x will be equal to how much? If I put y is equal to 0, then 2x will be equal to 12, that means x will be equal to 6. Okay. If I put y is equal to 1, so 3 ones are 3, so 12 minus 3 will be how much? 9. So 2x will be 9, it will be equal to 9, so x will be equal to 9 by 2, that is 4.5. I move ahead, I put x is equal to 2. So if a fraction or a decimal comes, then we still move ahead, and then y is equal to 2, 3 2 is 6, 12 minus 6 is 6, 6 divided by 2 is 3. So I have got two integral pair, not the decimal pair. If you have to get minimum of two integral pairs you take. So I take 6 comma 0, so when x is 6, y is 0, okay, good. Then we have got, now I leave the decimal part, it will fall in that line, but anyway, when x is equal to 3, then y is equal to 2. So x is equal to 3, y is equal to 2. So I got this. Now what will happen? Now so we have this, x is equal to 3, y is equal to 2. So here is the thing, I draw a line now. I'll draw a line now joining these two. Okay, so we have done that. Now we have got one of the lines, right? Then we go to next one, x minus 2y is equal to minus 1. There can be another very good method. I will put it like this, x is equal to 2y minus 1, it goes this side. So now if I put y is equal to 1, and 2 ones are 2, minus 1 is 1, then y is equal to 0, you should put 0 once. So y is equal to 0, then x is equal to minus 1. So we've got two integral point, and we try to see x is equal to 1, then y is equal to 1, and this is minus 1. Then we put x is equal to, let us try one value from here. We put y is equal to 2. So y is equal to 2 is a 4, minus 1 is 3. So we are getting 3 comma 2. So we get this
nicely we get this now. So we will be able to now get the solution of this. So what is the solution? Let us see. So the solution is, so I drop the perpendicular on x, so the value of x is 3, and if I drop the perpendicular on y axis, the value of y is, so x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution. Now what are the other questions that can be asked from graph? First thing is that they will tell without plotting the graph, can you tell where this line will cut x axis? Listen, rewind twice or thrice and try to understand what I am telling. This equation will cut, where will it cut x axis or where will it cut y axis? If they will ask you where does it cut x axis, then just close y totally with the sign. So 2x is equal to 12, so x is equal to 6. So it will cut x axis at 6. So if they ask you where does it cut x axis, leave the value of y or cover it. Now again they will ask you where does it cut y axis, so I will cover x. Whatever is asked, just the opposite one has to be covered. Where does it cut y axis? 3y is equal to 12, so y is equal to 4. Yes, really, see, it has cut over here. So this is one of the questions that is to be asked. So always remember x axis को कहाँ काटेगा, where कहाँ पर काटेगा ये एक्सिस पर को, x axis को, तो y को 0 कर दीजिए या y को कवर, इसको 0 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x 6, तो यानी 6,0 पर काटेगा. आप पूछेगा y को कहाँ काटेगा, तो x को 0 ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 4 यानी 0,4. कोऑर्डिनेट बोलना पड़ता है x का हमेशा पहले, तो 6,0 पर x को काटा और 0,4 पर y को काटा. दूसरा पूछ सकता है कि दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा. तो इसका बेस का लंबाई कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाउ मच, हाफ 1 2 3 4 5 6 7 इनटू इसका हाइट कितना है, ये हाइट कितना आपको आ रहा है 2, यानी 7 स्क्वायर यूनिट. यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कि आप माइनस को मतलब नहीं रखते हैं. जब बेस गिनते हैं तो बेस का लेंथ 6 तो यहीं तक होगा और ये 1 ऐड होगा, ये लेंथ है, मैग्नीट्यूड है. तो इसको ये नहीं कि 6 - 1 कर दिया, ये मिस्टेक नहीं. 6 और आगे और बढ़े तो +1, बेस की लंबाई 7 यूनिट्स है. तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया. तो मैं इसे अब मिटा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है आपको 2x + 3y इज इक्वल टू 2. 2x + 3y इज इक्वल टू 2. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना है, अपने से कॉमन सेंस, और धीरे धीरे कैलकुलेशन स्किल्स जब आपको आएगा तो यू विल नो कि कैसे फ्रैक्शन से बचेंगे. तो पहले तो आप देख रहे हैं कि अगर y को 0 रखते हैं तो x 1 हो जाएगा, एकदम पक्का है. देखिए y को 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2 1. फिर आप अगर यहाँ ऑड नंबर रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 1 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2 - 3 -1 आएगा. तो इवन नंबर रखते हैं, 3 2 रखते हैं, तो 3 2 6, उधर गया तो 2 - 6 -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, -2. फिर से बैठा के देखा जाए, 2 2 4 -4 एंड 3 2 6 -4 + 6, तो आ गए. तो डेसिमल से बचने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ ऑड नंबर रखेंगे तो
इवन और ऑड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ है, हमको इवन और इवन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसीलिए सो हमारा एक डिब्बा खाली, तो हमको एक मिल गया। तो x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो गया हमारा x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू 2। चलिए ये भी हो गया। और ये x एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये x एक्सिस को 1 पर काटेगा। तो वी विल ड्रॉ द लाइन। अब देखा जाए y को कहाँ काट रहा था, y को 2/3, करीब करीब ये पार्ट 2/3 है, हो गया। अब नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। जैसे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखता है तो फट से उसके टर्म में इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दीजिए, ज़्यादा आसान है। मतलब x अगर है बिना कोफिशिएंट को तो 8 + 2y। चलिए x और y हम क्या करते हैं, y को ले लेते हैं -2, तो y को -2 लेंगे। क्योंकि अगर y को 1 लेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा, तो मुझे ग्राफ लंबा खींचना पड़ेगा, तो मेरा ग्राफ अभी छोटा, आप लोग कॉपी में कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स है। तो -2 y इज इक्वल टू -2 लिया मैंने, तो -2 × 2 -4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -3 मैंने ले लिया, या यहाँ का कोई वैल्यू लिया जाए, y अच्छा चला जाए, लेट अस सी। y इज इक्वल टू मैंने -3 ले लिया, तो -3 तो -6, 8 में से -6, तो 8 -6 इज 2। तो अब इसको मैं बनाता हूँ 4 और -2, x इज 4 एंड y इज -2। Next is x is 4 and y is -2, and x is 2 and y is -3. X is 2 and y is -3. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया देखा जाए। इसका सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -2। तो 4, -2 चेक किया जाए दोनों इक्वेशन में। यहाँ x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 एंड 3 - 2 6, तो 8 - 6 इज 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर रखते हैं x इज इक्वल टू 4, अब -2 × 2 -4, अब यहाँ माइनस, तो +4, 4 + 4 8 आए। तो ये सब सीख लीजिए बनाना। और जैसे ही पूछेंगे कि x को कहाँ पर काटेगा, तो y को क्लोज कर दीजिए। तो x को ये लाइन 1 पर काट रहा है, सही है, और y को कहाँ पर काट रहा है, 2/3, सही है। अब नीचे वाला को देखा जाए, इस लाइन को, ये x को काटेगा 8 पर, जो कि ग्राफ जा भी रहा है 8 की तरफ, और y को काटेगा -4 पर, यहाँ है। कभी कभी ऐसा इक्वेशन हो सकता है जब आपको पैरेलल लाइंस आ जाए। तो पैरेलल लाइंस आने का मतलब क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल, मतलब कि x और y का कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर x और y का कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, तो वो कटेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ कटता है वहीं का कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है, जहाँ कटता है वहीं का कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और -2 यहाँ का कोऑर्डिनेट है। देखिए ये कट रहा है, तो इसके सामने x पर डाले परपेंडिकुलर, तो x का वैल्यू मिल गया, और y पर परपेंडिकुलर डाले तो y पर, यानी जिस एक ही पॉइंट पर दोनों कटेगा। तो जब एक ही पॉइंट पर दोनों कटेगा तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइन पैरेलल हो जाता, बाय चांस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं अपने आप आपको बता सकता हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिएगा ग्राफ बना के, कि इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 12,
और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 36। इसका बना के देखिएगा घर पे, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो अगर पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही इक्वेशन को डिफरेंट तरह से दिया, बट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इसी को 2 से गुना कर देता हूँ। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, सबको 2 से गुना कर देता हूँ, तब ये दोनों सेम ही लाइन है, क्योंकि 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर जा रहा है लाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हज़ारों पॉइंट्स इस पर सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसको भी इसमें भी वही सब पॉइंट्स, यानी इन दोनों का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। यानी जो भी हज़ारों पॉइंट्स इस पर हैं तो वो सारे पॉइंट्स इस पर भी है, क्योंकि सेम ही लाइन है। तो यानी 3 कैटेगरी होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन के ग्राफ के थ्रू, आप समझिए। एक होता है जब इंटरसेक्ट करता है लाइन, तब होता है दे हैव गॉट यूनिक सॉल्यूशन। इसका बनाइएगा तो पैरेलल आ जाएगा, तो नो सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ बनेगा तो एक लाइन के ऊपर एक ही आ जाएगा, दूसरा लाइन भी उसी पर आ जाएगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है। आपको देखने में लगा भी हो कि हमने किया क्या। यहाँ हमने क्या किया कि कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, x और y के। तो a1/a2 क्या हो गया, 1/2। 2/4 मतलब 1/2। a1/a2 क्या हो गया, 1/2। a1/a2 1/2, सॉरी b1/b2 1/2, लेकिन c1/c2 1/3 है। तो जब कोफिशिएंट में भी रिलेशन है कि उससे पता लग सकता है कि ग्राफ पैरेलल है कि कटेगा कि सेम लाइन है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल लाइन होगा। देखिए a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, 3/6 मतलब 1/2, और c1/c2 1/2 नहीं है, 1/3 है, तो ये पैरेलल लाइन होगा। इनमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसे नॉट इक्वल टू हो गया मतलब पक्का लाइन कटेगा, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा कहीं पर भी। इसमें देखिए 2/1 है और यहाँ -3/2 है। यहाँ पर देखिए 2/1 है और यहाँ पर -3/2 है, तो बाई चांस दोनों का सेम आ रहा है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। इसमें सेम लाइन में सारा चीज़ सेम है, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2। अगर ऐसा केस रहेगा तो ऑल द लाइन्स, बोथ द लाइन्स विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड दे आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।